Good morning, students. I hope that you are doing all good. So once again, welcome to this session, your that is your social science session, and the chapter 6, political parties. Yesterday we discussed about some different types of parties like one party system, two party system, and multi party system. And we also imagine a situation if the political parties, these are not existed in any country, what happened to that country? What we can be say that the scenario would be there. So we discuss all these things thoroughly according to the functions that is performed by these political parties. Now we come to understand the importance of these parties. They played a very significant role, and we can say these are the representatives because these representatives, they are on the behalf of the people, they become the members of the parliament, and in this way they form the government and run the nation. So without the political parties, nobody will be answerable to the people. Nobody will make promises. Nobody will make policies and programs. So what happened to the people if the people they belong to the disadvantaged section? Like I can give you some examples here that you know that uh, in India especially there was a discrimination on many grounds. Yeah, everybody know, and because of these reasons some sections of the people they were deprived of just assessing the like country's resources, and because of these reasons they were left behind to the mainstream of the society. So these political parties, they raised issues related to the deprived section. Like you everybody know B.R. Ambedkar, Mahatma Gandhi. There were so many leaders, they raised issues related to these section of the people. That's why you now hear about the reservation policy. It is included in our constitution because of the efforts of these leaders, and these leaders means the members, another members of the political party, like that time Congress party was there, it was given the platform to the members to raise the issues. So we come to know that it is beneficial. What is beneficial? Whenever the issues are raised on the public platform, based on the political platform. So in this way, in the constitution, this reservation policy is adopted and certain quota is fixed for the deprived section of people. So conclusion is there that in this way, these political parties, they performed a very significant role to give the social justice to these people. So that's why we can understand why these political parties are very essential. And next question was also there that what type or system or how many parties are just ideal for any country. So we discussed thoroughly about the one party system, then two party system, then multi party system. So there was an answer was also there that no system, no party system is ideal for any country because of the factors are also there. Like we can say that the political and social condition of that particular country. Multi-party system sometimes it seems that it is very messy and very, we can say that is hodgepodge is also there. But what is the positive aspect in that? कि लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस आते हैं, है ना? द पीपल दे जस्ट गिव सो मेनी मल्टी ओपिनियंस आर देयर, आइडियाज आर देयर, एंड हाउ द लार्जर द इंडिया इज द लार्जर सोसाइटी. सो इन दिस वे वी कम टू नो कि लोगों की इतने सारे ओपिनियंस को और इनको इनको सबको एकोमोडेशन कहाँ मिला? पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू. एक क्वेश्चन यहाँ पर फ्रेम होता है कि इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम क्यों है? तो यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम का होने का कारण है सोशली और ज्योग्राफिकल, जो हमारा इंडिया का जो स्ट्रक्चर है उसकी वजह से यहाँ पर मल्टी पार्टी सिस्टम है. ज्योग्राफिकल, यू नो दैट रीजन, डिफरेंट रीजन्स आर देयर, फिजियोग्राफी डिविजन्स आर देयर, diversity is also there, and there is a special provisions to give the assurance, and also we can say कि उन लोगों को पूरी वहां पर मेंबरशिप मिलनी चाहिए. तो हर यानी SC, ST, OBC, जनरल कैटेगरी सबका वहां पर जो है
मेंबरशिप होनी जरूरी है। तो इन दिस वे वी कम टू नो कि इंडिया इट इज सूटेबल फॉर द मल्टी पार्टी सिस्टम, क्योंकि इंडिया की जितनी लार्जर सोसाइटी है, जितने लोग हैं, उन सबके व्यूज भी उतने हैं। तो एक सिंगल पार्टी या टू पार्टी सिस्टम उन सबकी ओपिनियंस को, उन सबके आइडियाज को, एस्पायरेशंस को एकोमोडेशन नहीं दे सकता। दैट इज वी कैन से दैट द मल्टी पार्टी सिस्टम इज गुड फॉर इंडिया। नाउ we come to the today's topic. Our today's topic is national political parties. How many types of political parties that existed? Especially we can say that especially three types of political parties are there, that is national political party, state political party, and some we can say unrecognized political party. Political parties are there, like we can say local level political party, district level पर होती है political parties होती है, but why these are called the unrecognized? recognized क्यों नहीं होती है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। नाम से ही पता चल रहा है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टी वो पार्टी होती है जो नेशन वाइड वर्क करती है। नेशन वाइड वर्क करने से क्या मतलब है? एक ऑर्गेनाइज्ड पार्टी होती है, जहां वो पार्टी केवल एक स्टेट में नहीं होती, पूरे नेशनल लेवल पे जितने स्टेट्स हैं, मोस्टली सभी स्टेट्स में वो पॉलिटिकल पार्टी होती है। पहला उसका फीचर ये। सेकेंड फीचर है कि पॉलिटिकल पार्टी, जो नेशनल पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो नेशनल लेवल पर वर्क करती है। नेशनल इट मीन्स कि पूरी कंट्री के अंदर वो अपना उसका वर्क का जो क्राइटेरिया होता है वो पूरी कंट्री होती है। थर्ड थिंग कि नेशनल पॉलिटिकल पार्टी को हम रिकॉग्नाइज कैसे कर सकते हैं कि ये नेशनल पॉलिटिकल पार्टी और ये स्टेट पार्टी है? तो नेशनल, समझ लीजिए सम इलिटरेट पर्सन्स आर देयर, some specific criteria is also given to recognize the national political party. अब किसी बच्चे से भी पूछें, चलो बच्चे का तो क्या, उसको अगर जब तक एक्सप्लेन नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं आएगा, लेकिन हम कुछ चीजें ऐसी बहुत जिसको कहते हैं ना स्पेसिफिक चीजें बता सकते हैं जिससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि ये नेशनल पार्टी और ये स्टेट पार्टी। नेशनल पार्टी का और क्या फीचर होता है कि नेशनल पार्टी सभी स्टेट्स में मोस्टली उसकी ब्रांचेस होती है। जैसे मैंने कहा बीजेपी, अब वो जो बीजेपी है वो राजस्थान में भी काम करेगी, मध्य प्रदेश में भी है, गुजरात में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में भी है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, इट मीन्स के दैट बीजेपी ब्रांचेस आर इन ऑल स्टेट्स, ऑन ऑल वी कैन से दैट की नेशनल लेवल पे वर्क करती है। सेकेंड थिंग, देयर पॉलिसी, whatever the policies they follow, whatever the agenda they follow, whatever the ideology they followed, that would be also same. अब हमने कहा कि राजस्थान में स्टेट असेंबली के चुनाव है, इलेक्शन, तो यहाँ जो बीजेपी गवर्नमेंट होगी उसका जो वर्किंग क्राइटेरिया होगा, जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, जिस पे बीजेपी मतलब पार्टी बनी है, उस आइडियोलॉजी को फॉलो करेंगे। ऐसा नहीं कि वो अपना सेपरेट एजेंडा बना लें या सेपरेट बातें करने लगे या सेपरेट अपना सेपरेशन जिसको कहा जाए कि अपनी पार्टी से अलग होकर बात करें, ऐसा नहीं होगा। चाहे वो कहीं पर भी है, अगर जम्मू कश्मीर में है तो भी वहां पर भी सेम चीज रहेगी, बट थिंग क्या चीज हो सकती है, अकॉर्डिंग टू द स्टेट्स नीड। जैसे हमें मालूम है कि जम्मू कश्मीर जो स्टेट है वो बहुत सेंसिटिव है, वहां पर आए दिन जो है आप लोग देखते हैं टेररिस्ट अटैक होते रहते, तो उस सिचुएशन में इलेक्शन का एजेंडा वही रहेगा, बट इट कैन बी चेंज, द मीन्स कैन बी चेंज, कि जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग तरीके से हो सकता है। वहां इतनी ओपनली एसोसिएशन मीटिंग्स नहीं होंगी, ओपनली सब कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा जो है कन्फाइंड और रिस्ट्रिक्टेड होगा। तो इन द सेंस वी कम टू नो कि नेशनल पार्टी जो है एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम करती है, एक प्लान तरीके से काम करती है। अब आपको मालूम है कि नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन कैसे होता है, हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज नेशनल पार्टी। तो इट इज वेरी एसेंशियल टू नो कि इंडिया में 2017 के अकॉर्डिंग 7 नेशनल पार्टी है। One more fact is also there, according to the new publishing there, and that is report of Election Commission. Now 8 national parties are there. One party is added, is that is the People's Party, National People's Party, जिसे जो लीडर हैं वो 2013 में ये पार्टी बनी है, और पीएन संगमा जो है उन्होंने ये पार्टी बनाई है।
तो 8 अभी पार्टी है, हमें जो टेक्स्ट बुक में हमारे जो दे रखा है वो 7 पार्टी है, हमें उन 7 पार्टीज को ही पढ़ना है। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जितनी भी पार्टीज हैं, नेशनल पार्टी, स्टेट पार्टी, इन सबका रिकॉग्निशन, इन सबका रजिस्टर होना बहुत जरूरी है। ये रजिस्टर कहाँ होता है? इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूशन है वेयर दीज पार्टीज आर रजिस्टर्ड and the conducting of the election, it is also given the task to the election commission. Election commission is a independent statutory body. कॉन्स्टिट्यूशन में इसको जो है लिखा गया है कि इलेक्शन कमीशन होगा इंडिया में, स्टेट का अलग, सेंटर का अलग। स्टेट इलेक्शन कमीशन एंड नेशनल जो है वो इलेक्शन कमीशन होता है। ये इलेक्शन कमीशन जो है, these are responsible for conducting the election. They also just gives the guidelines to these political parties. Code of conduct is also there, and through all the process from the just nominating the candidates, just enrolled the voters, all these processes, all these functions, these are performed by election commission. This is independent body. No interference in the working of election commission of any, no member of the parliament they can interfere. So in this way come to know that the national party, here we are talking about the national party, the election commission recognized all the parties equally. Equally means here whatever the criteria is followed by the election commission, it is same. But one thing that we can differentiate the state party as well as the national party. What is this? This we will discuss. नेशनल पार्टी वो पार्टी है जिसको स्पेशल फैसिलिटीज दी जाती है। स्पेशल फैसिलिटीज मीन्स एक उसका रिकॉग्निशन जो होता है वो यूनिक होता है, उसको यूनिक सिंबल दिया जाता है। यूनिक सिंबल मीन्स जैसे आपको पता है कि जो 7 नेशनल पार्टीज हैं इनके जो सिंबल्स हैं, जैसे कि बीजेपी का हमें पता है लोटस है, ठीक है, और कांग्रेस का हमें पता है कि जो हाथ जो ये अपना पंजा होता है वो है। तो हमने ये देखा कि डिफरेंट पार्टीज दे हैव देयर यूनिक सिंबल। किसी भी स्टेट पार्टी का ऐसा सिंबल नहीं होगा। स्टेट पार्टीज जो होती है उनके सिंबल्स मिल जाते हैं, एक दूसरे से मैच हो जाते हैं कि उसका कुछ थोड़ा सा फर्क होता है ऑलमोस्ट। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट इन दिस सब्जेक्ट, तो आपने देखा होगा कि व्हेनेवर द इलेक्शंस आर देयर स्टेट असेंबली, तो कई बार सेम सिंबल भी होते हैं। बट नेशनल पार्टी के जो सिंबल्स होते हैं वो बिल्कुल यूनिक होते हैं, नोबडी कैन शेयर। Second important thing is these symbols are only used for official purposes. These symbols are only used by the members of that particular political party. तो बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी की बात, हम बीजेपी की बात कर रहे हैं जैसे, तो वो जो लोटस सिंबल है वो उसके मेंबर्स ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं कि कोई दूसरी पार्टी है तो वो सिंबल को यूज कर रहा है। So in this way we come to know some unique facilities are given to this larger party. And one question is once again here, how we can, this is the larger party, this is a national party, this is a state party. These things we are step by step discussing. अब कुछ क्राइटेरिया बनाया है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन का जो क्राइटेरिया है उसको आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक होता है प्रपोर्शन ऑफ वोट, एक होता है पॉपुलेशन। देखो, दो तरह के चीजें होती है जिसे हमें समझना है। पॉपुलेशन एंड प्रपोर्शन ऑफ वोट, ये दोनों डिफरेंट चीज है। कैसे? इस चीज को भी समझने के लिए पहले जो क्राइटेरिया वो समझ लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल चीज है जिसको हम समझेंगे। अगर कोई नेशनल डिटेल क्राइटेरिया दे रखा है इलेक्शन कमीशन ने टू रिकॉग्नाइज द नेशनल पार्टी, फर्स्ट वी विल फोकस ऑन दिस। वो डिटेल क्राइटेरिया क्या है कि अगर कोई पार्टी जो नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन है उसके लिए क्या जरूरी है? फर्स्ट कंडीशन है 6% ऑफ वोट्स इन लोकसभा इलेक्शन। व्हाट डू यू मीन बाय दिस? 6% of votes in Lok Sabha election. Lok Sabha election, everybody know where we choose the prime ministers and another ministers. This is called the Lok Sabha election. House of the people it is called. अब यहाँ का क्राइटेरिया क्या है कि आप
आपको उस पार्टी को 6% वोट मिलने चाहिए। अब वो 6% वोट का क्या क्राइटेरिया है वो समझ लें। मान लें हमारी ये कंट्री है, इस कंट्री के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं, ठीक है, इस कंट्री के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो पूरी कंट्री के अंदर जितने वैलिड वोट्स हैं बच्चों, वैलिड वोट्स भी होते हैं, फिर इनवैलिड वोट्स होते हैं। वो कैसे? तो अभी आपको इनवैलिड समझाएंगे, पहले वैलिड वोट समझ लें। वैलिड वोट्स यानी कितने? 6% होने चाहिए। यानी टोटल पॉपुलेशन, मान लीजिए कि जो 1000 पीपल हैं अगर एक कंट्री में, हमारी कंट्री में मान लें कि हम 1000 पीपल हैं, अब आपको मालूम है कितनी पॉपुलेशन है, उसका 6% हमें निकालना हो, तो 1000 का हमने अगर 6% निकाला तो 60% आएगा। यानी कम से कम 60 लोगों ने, 60% ने अगर उस पार्टी के लिए वोट किया है तो वो नेशनल पार्टी रिकॉग्निशन होगा। पहली कंडीशन। अभी पूरी कंडीशंस पूरी नहीं हुई है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे। मुझे बताएं कि पहला जो क्राइटेरिया है वो समझ में आया? रेज योर हैंड्स प्लीज कि फर्स्ट क्राइटेरिया समझ में आया, जिसमें हमने ये बात की कि कंप्लीट जो है ये पूरा का पूरे इंडिया में हमने अज्यूम किया कि 1000 है। अगर हमने जो करोड़ पॉपुलेशन का अगर 6% निकाला तो टाइम लगेगा, तो हमने माना कि 1000 पीपल है, उसका हमने 6% निकाला तो 60 आता है। 60% ने अगर लोकसभा इलेक्शंस में उस पार्टी के लिए वोट किया है, इट मींस इट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी। और अब और को समझने जा रहे हैं, थैंक यू। और को समझेंगे, या तो ये कंडीशन पूरी करता हो और नहीं तो ये कंडीशन। दूसरी कंडीशन कहती है 6% ऑफ वोट्स इन असेंबली इलेक्शन। असेंबली इलेक्शन क्या होते हैं बच्चों? असेंबली इलेक्शन जो स्टेट इलेक्शन के होते हैं, जिसमें हम सीएम चीफ मिनिस्टर चुनते हैं और सीएम जो है अनदर मिनिस्टर्स को चुनता है, वो असेंबली इलेक्शन। मान लेते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट राजस्थान में है, गुजरात में है ना, मध्य प्रदेश में है और महाराष्ट्र में। इन चारों स्टेट्स में बीजेपी गवर्नमेंट है, ठीक है। अब क्राइटेरिया क्या कहता है? अगर मान लीजिए आपको 6% लोकसभा इलेक्शन में वोट नहीं मिले तो आपका दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि असेंबली इलेक्शन में जो है आपको 6% वोट मिलने चाहिए। असेंबली इलेक्शन में 6% वोट मिलने चाहिए, मतलब मान लेते हैं 4 स्टेट्स है ना, 1 2 3 4, यहाँ चारों में बीजेपी गवर्नमेंट है। अब बीजेपी गवर्नमेंट है तो इन 4 स्टेट से कितने वोट आने चाहिए? टोटल 6% वोट आने चाहिए। या तो ये क्राइटेरिया, ठीक है, या फिर ये कि 6% लोकसभा, पूरी इंडिया के अंदर जितने भी वोटिंग की है उसमें 6% वोट आने चाहिए। तो यहां पर भी क्या हो गया, यहाँ 4 स्टेट का मिला के 6% है, वहां पूरी कंट्री की हमने मिला के 6% है। एक ये तरीका है, लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। अगली कंडीशन कहता है, यहां पर तो चॉइस है, या तो ये या तो ये। विंस एटलीस्ट 4 सीट्स इन लोकसभा इलेक्शन, कि कम से कम यहां पर अगर 6% हो गया है आपका, तो आपको जो है कितनी सीट्स मिलनी चाहिए? 4 सीट्स मिलनी चाहिए। और अगर 6% लोकसभा इलेक्शन में है तो वहां पर 4 सीट्स मिलनी चाहिए। बात को दोबारा समझ लें, दोनों कंडीशंस में लोकसभा इलेक्शन है तो 6% वोट मिलने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो नेशनल पार्टी बनने के लिए हमारे इलेक्शन कमीशन ने थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया है। वो रिलैक्सेशन क्या है कि मान लीजिए इन 4 स्टेट्स में एक सिंगल पार्टी को 6% वोट मिल जाता है। पहली कंडीशन क्लियर हो गई। सेकेंड कंडीशन, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप चाहे इसको पूरा कर रहे हो या इसको, आपको 4 सीटें लोकसभा इलेक्शन में मिलनी जरूरी है। 4 सीट्स इज वेरी नेसेसरी। अब इस वो जो चीज मैं आपको प्रपोर्शन वाली बता रही थी, अब उसको समझ लें। मान लें कि बीजेपी गवर्नमेंट है, यहां पर हमने लिख लिया वोट्स, ठीक है,
यहाँ पे हमने लिख लिया परसेंट, यानी कितने मेंबर्स ने वोट किया, कितना परसेंट मिला। तो मान लेते हैं कि उसको 44% वोट मिले और 80 जो परसेंट पीपल है उन्होंने वोट किया। 44% उनको वोट मिले, लेकिन 80% जो है पर्सन्स ने उनको वोट किया। तो इसका मतलब हमें ये समझना चाहिए कि हर 4th पर्सन ने बीजेपी को वोट दिया, तो उस हिसाब से तो केवल वोट जो परसेंट सीट्स आई वो तो 44%, ये जो परसेंट है वो सीट्स है, लेकिन सीट कितनी आई, 44% की सीट्स आई। इसका मतलब ये नहीं है कि हर 4th पर्सन ने उन्हें वोट दिया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो सीट्स है, हमें मालूम है कितनी सीट्स है लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए 545 सीट्स होती हैं, ठीक है। अगर हम हमेशा ध्यान रखना प्रपोर्शन टू पॉपुलेशन, उसी हिसाब से जो है जो प्रपोर्शन ऑफ सीट्स है वो उनको मिलती है। तो यहाँ पर 80% लोगों ने वोट किया, लेकिन सीट 44 है, क्योंकि उसका रीजन क्या है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी से कितनी सीट है और कितनी वहां की पॉपुलेशन उसके लिए वोट करके डिपेंड ये करता है। ये बहुत टेक्निकल चीज है, इसको ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए राजस्थान में, राजस्थान स्टेट है, उसको हमने 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया। उस 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज की एक एक सीट है, 5 सीटें हो गई। 5 सीटों के लिए 5 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग हुई, वहां से उनको जो है 30% वोट लोगों ने दिए और कितनी सीटें मिली, उनको सीटें मिली 2। तो इसका मतलब क्या हुआ कि प्रपोर्शन टू द वोट्स सीट्स आर डिसाइडेड, कि जितने वोट मिले और जितनी सीटें हैं उस हिसाब से वो प्रपोर्शन डिसाइड होता है। ये क्राइटेरिया फॉलो किया जाता है। तो ये टेक्निकल एक्स्ट्रा चीज मैंने आपको बताई। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो लेटर आई विल एक्सप्लेन यू मोर ब्रॉडली इट, बट व्हाट इज इन योर कोर्स आई एक्सप्लेन यू कि 6% लोकसभा इलेक्शन में वोट मिलने चाहिए फॉर रिकॉग्निशन ऑफ एनी नेशनल पार्टी। सेकेंड थिंग, अगर ऐसा नहीं होता तो जो असेंबली इलेक्शन होते हैं उनमें 4 स्टेट्स के आपको 6% वोट मिलने चाहिए। इन एडिशन टू दिस, इसके साथ क्या जरूरी है, 4 सीट्स इन लोकसभा, कैसे भी करके आपको 4 सीटें आपको हासिल करना जरूरी है, तब आप नेशनल पार्टी बनेंगे। तो ये क्राइटेरिया जो है इलेक्शन कमीशन फॉलो करता है। और अभी मैंने आपको सिर्फ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी का ही एक्सप्लेन किया है, स्टेट पार्टी का अलग मैं आपको बताऊंगी ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन जो है, हमें जो चीजें ध्यान रखनी है वो 3 बातें ही ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले 6% ऑफ लोकसभा इलेक्शन, सेकेंड असेंबली वाला 6%, then it is very necessary 4 seats is very essential in Lok Sabha to recognize as a national party. Clear? यहां तक समझ में आया? यस कपिल, जो अभी समझाया, मतलब इन योर कोर्स जो समझाया वो समझ में आया? रेज योर हैंड्स, देन वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब जो हमारा टॉपिक है आज का, वो हम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज की बात करेंगे और वही चीज पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आएगी। I told you that in India there are, in according to the 2017, there are 7 national parties. Today we are doing the topic national parties. So there are, according to the 2017, 7 national parties. कौन कौन सी 7 नेशनल पार्टीज हैं? दैट नंबर ऑफ बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, मार्क्सिस्ट है आपकी, सीपीआई है, सीपीएम है आपकी, ठीक है,
बहुजन समाज पार्टी। तो ये जो जनता ये जो 7 जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इन सबका आपको क्या माइंड में रखना है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेमोराइज देयर फाउंडेशन ईयर। Second is the given the who was the founder. Third thing is that ideology. It is very important. And sometimes the question can be directly asked to the comparison of BJP and Congress sometimes. So it is very important. We have to know thoroughly about the foundation, the formation of that party. Their ideology is very necessary. So first of all, I am going to start with BJP. बीजेपी गवर्नमेंट ये 1980 में आई थी और ये 1980 में आई, तो इसका मतलब ये नहीं था जिसको कहते हैं ना कि एक फॉर्मल स्ट्रक्चर इसका कब आया। फॉर्मली ये 1980 में आई थी, लेकिन इसकी जो स्टार्टिंग हुई थी वो 1951 में हो गई थी। बीजेपी जिसको हमने कहा कि बीजेपी जो पॉलिटिकल पार्टी है वो 1980 में फॉर्मली आई, लेकिन 1951 में इनके जो एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1951 में उन्होंने जो है इस पार्टी की नींव रखी थी। ठीक है, तो उन्होंने इस पार्टी की नींव रखी, तो उस समय ये क्या था? इट वाज लाइक अ भारतीय जनसंघ, है ना, भारतीय जनसंघ के नाम से इसकी स्टार्टिंग की थी उन्होंने। लेकिन भारतीय जनसंघ की स्टार्टिंग इन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में की थी। बट बिकॉज ऑफ दिस डिसइंटीग्रेशन, आपको पता है कि बहुत सारी आइडियोलॉजीज होती है, बहुत सारे आइडियाज होते हैं, कई बार क्लैशेस होते हैं। बिकॉज ऑफ ऑल these reasons this party was also disintegrated. So it reviving like the BJP. जब ये वापस नई पार्टी बनी तो क्या बनी? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो, इसको अगर हम कह दें कि देखो 3 तरह की पार्टीज में आप बात करते हैं आइडियोलॉजी के हिसाब से। अकॉर्डिंग टू द आइडियोलॉजी 3 टाइप, लाइक द फ्रंटियस्ट, लेफ्टियस्ट, दिस इज राइटियस्ट, सेंट्रिक and leftist. First of all, we have to understand the meaning of all this. Rightist थे बीजेपी। राइटियस्ट बीजेपी क्या थे? मतलब क्या हुआ इस चीज का कि जो आइडियोलॉजी चली आ रही पुरानी, जैसे हमारे इंडिया में है हिंदुत्व, इसको बहुत ज्यादा हिंदुत्व, जस्ट डोंट थिंक अबाउट कि हिंदू रिलीजन को बढ़ाने के लिए ही वो आइडियोलॉजी काम करे। हिंदुत्व मीन्स दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। हमारी जो कोर्ट है उन्होंने भी हिंदू धर्म को क्या माना है? आर्ट ऑफ लिविंग माना है। क्योंकि हमारे जो हिंदू धर्म में लिखा है कि जो पूरा संसार है, पूरा वर्ल्ड है, उसको वसुधैव कुटुंबकम की तरह ही माना है। तो दिस इज कॉल्ड द आर्ट ऑफ लिविंग। तो बीजेपी जो जिस आइडियोलॉजी पर काम कर रही थी वो उसकी जो थी वो दैट इज राइटियस्ट। राइटियस्ट मीन्स यानी जो पहले से चला आ रहा है उसी चीज को उन्होंने फॉलो किया, उसको चेंज नहीं किया। सेंट्रिस्ट जो चीज होती है, सेंट्रिस्ट का मतलब ये होता है कि जो कांग्रेस है वो सेंट्रिस्ट पार्टी है। कांग्रेस सेंट्रिस्ट पार्टी क्या है? यानी कि बिल्कुल यूं कहा जाए कि उस फाउंडेशन के समय विद अकॉर्डिंग टू द नीड्स एंड टाइम जो इन्होंने आइडियोलॉजी फॉलो करी, उस चीज के अंदर इन्होंने बदलाव भी किया, थोड़ा बहुत बदलाव किया, मॉडर्न आइडियोलॉजी को लाए, तो वो सेंट्रिस्ट थी। और जो लेफ्टिस्ट थे वो तो पूरा ही चेंज चाहते थे। लेफ्टिस्ट वो होते हैं लेफ्ट फ्रंट, आप लोगों की पार्टी है लेफ्ट फ्रंट, जिसमें ज्योति जो बसु रहे हैं उनकी एक लेफ्ट फ्रंट पार्टी है, प्लस अपने ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस वो लेफ्ट फ्रंट पार्टी है जो हमेशा रेवोल्यूशन की बात करती है, हमेशा चेंजेस की बात करती है। तो आज हम बात कर रहे हैं बीजेपी की। तो बीजेपी जो है वो किस आइडियोलॉजी पे काम करती है? देखो इम्पोर्टेंट क्या है, हमने देखा कि इसका फाउंडेशन क्या हुआ,
उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आएगी, वो है कि किस आइडियोलॉजी पे वर्क करती है। सबसे पहले ये कल्चरल नेशनलिज्म चाहती है। कल्चरल नेशनलिज्म मीन्स, और सेकेंड थिंग हिंदुत्व। कल्चरल नेशनलिज्म, फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कल्चरली, यू नो दैट इन इंडिया इज अ वेरी रिच इन पॉइंट ऑफ व्यू, कल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया इज वेरी रिच। तो वो ये चाह रहे थे कि जिस भी रीजन में जो भी लोग रहते हैं, जिस कल्चर को फॉलो करते हैं, they should just give the right to follow and propagate their culture, no disturbance, no interference in their culture। यानी वो समाज को, देश को जो नेशनलिज्म लाना चाहते हैं वो कल्चरली लाना चाहते हैं, एक देश को यूनिटी में रखना चाहते हैं। तभी तो आपने देखा होगा, अगर आप किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं या पॉलिटिकली इन सब चीजों को देख रहे हैं, तो आपको पता चलेगा इनकी आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। तो कल्चरली जो चीज उन्होंने जोड़ी, कल्चरली नेशनलिज्म की बात की उन्होंने, सेकंड हिंदुत्व की बात की। अब हमें लग रहा है कि शायद राम मंदिर बना दिया, जो हमारे यूपी के जो सीएम है योगी है ना, तो वो हमेशा भगवा पहनते हैं, तो शायद हिंदुत्व से मतलब ये, हिंदुत्व से मतलब मैंने अभी आपको समझाया, हिंदुत्व मीन्स सबको साथ में लेकर, ऑल रिलीजन पीपल दे कैन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन। मीन्स पूरी कंट्री के लोगों की बात कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड के लोगों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने हिंदुत्व जो चीज है वो आर्ट ऑफ लिविंग से एक रहने के, कि भाई हमें किन आइडल्स को फॉलो करना चाहिए अपनी लाइफ में, किन प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए। तो बीजेपी इस आइडियोलॉजी पे वर्क कर रही थी और आज भी कर रही है। सेकेंड थिंग था कि वन फुल टेरिटोरियल एंड पॉलिटिकल इंटीग्रेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हुआ कि नहीं हुआ? जो 360 जो वहां पर धारा जो काम करी थी उसको क्रैक कर दिया, और क्या किया, इंडिया के अंदर उस जम्मू एंड कश्मीर को मिलाया। ये एक बात अलग है कि चाइना और पाकिस्तान के ऊपर उसका अभी भी है, लेकिन हम ऐसा नहीं दिखाते। हमारा जो मैप है वो क्या दिखाता है, हमारे मैप पे हम ये देखते हैं इट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और आपने ये देखा कि बीजेपी जब से गवर्नमेंट बनी है, 2 बार से जो बीजेपी टेन्योर से आई है, 2019 में सेकेंड टाइम जो है इलेक्ट हुई है, तो वो गवर्नमेंट उस आइडियोलॉजी को पूरी तरह से फॉलो कर रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तभी मैंने आपको बोला राइटियस्ट मीन्स जो आइडियोलॉजी शुरू से बनी है आज भी उसी को फॉलो किया जा रहा है। जम्मू एंड कश्मीर को, यानी उस समय जस्ट थिंक अबाउट कि 1947 में आजाद हुआ भारत, तब जम्मू एंड कश्मीर का तब से चला आ रहा था। उसके बाद इंटीग्रेशन वाली प्रॉब्लम आई, प्रिंसली इंटीग्रेशन, जम्मू एंड कश्मीर जो था वो प्रिंसली स्टेट था, वो इंडिया में मर्ज नहीं होना चाह रहा था। उसके बाद उसके ऊपर जो अटैक हुआ, पाकिस्तान ने जो अटैक किया उसके ऊपर, नॉट डायरेक्टली है ना, धीरे धीरे अपनी आर्मी को वहां पहुंचाया। तो इस तरह से वहां के जो किंग थे उन्होंने इंडिया से मदद मांगी और वो लिख कर दिया उन्होंने कि इसके बाद हम जो है इंडिया का इंटीग्रल पार्ट होगा जम्मू कश्मीर। तो इट मीन्स जो आइडियोलॉजी उस समय बनी थी, बात जो उस समय चल रही थी, बीजेपी ने उसी चीज को फॉलो किया। तो टेरिटोरियल जो है उन्होंने उसको जम्मू एंड कश्मीर को, इट इज ऑल्सो इंक्लूडेड इन इंडिया। Third thing, a uniform civil code. What do you mean by civil code here? Uniform civil code, you know that is equality before law. कानून के सामने सब बराबर. Civil people means we all people. Different religion have different their codes are there. लेकिन बीजेपी ने हमेशा related to the religious conversation, religious to that is related to the just change the religion, इन सब पे उन्होंने, इन कन्वर्सेशन पे स्पेशली और इन चीजों पे कि जबरदस्ती आप किसी का धर्म को बदलना, इन सब पे बैन लगाया। क्योंकि वो क्या चाहते थे, हिंदुत्व की फिर बात आती है, वो पूरे देश के अंदर ऐसा नहीं कि एक धर्म लाना चाहते थे, वो पूरे देश में लोगों को यूनाइट करना चाहते थे। और इसीलिए उन्होंने, अब फिर एक एग्जाम्पल आ रहा है सिविल कोड वाला, जहां पर उन्होंने 3 तलाक, उस रिलीजन में जो 3 तलाक थे उसको भी क्रैक कर दिया। So that's why you can see the practical things are also around you, that what the ideology was there, they are following and just bringing new changes in society to just give the social justice,
समाज में सामाजिक न्याय देने के लिए चेंजेस आ रहे हैं, वो बीजेपी की आइडियोलॉजी थी. A uniform civil code was also there, and later for all the people living in the country and ban on religious conversation. जैसे जैसे बीजेपी के आइडियोलॉजी, बीजेपी एक फेमस पार्टी होने लगी तो लोगों का और दूसरे जो पार्टी, छोटी पार्टीज जो होती है, माइनर पार्टीज थी, उनका सपोर्ट बढ़ा. नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में. अभी आप देख लीजिए कि अगर बीजेपी एक सिंगल मेजोरिटी पार्टी बनी है तो उसका रीजन क्या है? उसका रीजन भी यही है कि वो पार्टी को सबकी मेजोरिटी मिली, लोगों की भी मिली, और छोटी माइनर पार्टी जो है वो बीजेपी से जुड़ी हुई है. इन एनी टाइम ऑफ दैट की कोalition गवर्नमेंट बनती है तो हो सकता है ये सारी पार्टीज बीजेपी में मर्ज हो जाए. तो इन दिस वी कम टू नो बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन. और सबसे पहले इसके बाद ये पार्टी जब से बनी है 1980 से 1998 में ये पार्टी जो है इसने गवर्नमेंट फॉर्म की एज अ अलायंस, जिसमें अलायंस क्या फॉर्म था? एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें बीजेपी एक मेजर पार्टी थी. अनदर पार्टीज दे मिंगल्ड विद दिस मेजर पार्टी एंड दे फॉर्म अलायंस. अलाइन गवर्नमेंट बनी, कोalition गवर्नमेंट बनी. So in this way we come to know that because of all ideology, the BJP that following the same ideology. And one thing more here, अंत्योदय. आपने देखा होगा अंत्योदय, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, जो सबसे पुअर, सबसे लास्ट में जो पर्सन है, इतना पुअर है, उसके लिए भी इस आइडियोलॉजी के अंदर आएगा, उनके लिए भी वर्क करना, और वो काम हो रहा है, आपने देखा होगा. Programs and policies these are making or formulated by the government. It is for the poorest of the poor, unto the people also. So we come to know that in this way that BJP that is formed in 1980, that all ideology according to that it was that party was formed, still it is pursuing that for the social justice in a country. So tomorrow we will once again discuss some another national parties. 7 parties are there. We will discuss Congress and other parties. If you have any doubts, you can ask a question.